Okay, Assalamu alaikum scholars. I hope you all are doing great. Thank you so much for joining in. We do have a lot of scholars who are going to join in, but we will definitely start our session right now. We have with us Miss Upasna Shashidharan. She is a PhD scholar from very reputed Indian Institute of Science, Education and Research. Uh, More about Upasna is that she has been lately doing a lot of informative videos on social media which have went viral, and a lot of people have been taking advantage and seeking a lot of knowledge from it. So when she is not busy working in the lab, she writes poems and stories. One of her many passions is teaching and trying to simplify scientific jargon for the people. So today's session would be on immune system 101 and immunity boosters. So this session is definitely one of the significant sessions that we definitely need to understand and follow, in given the fact that we are stuck in this pandemic right now. So I would not take much time. I would straight away want you all to welcome our today's guest Upasna, and I will pass on and welcome Upasna to KEI and our session today. So Upasna, over to you. Okay. Thank you so much, Omar. Hello, everyone. I can see all your messages. I'm Upasna, and today I'll be talking about the immune system and how it functions. So, first, I will start with how an infection occurs in the first place, and then I'll go on to how we fight it, like our bodies fight it. So if you do have any questions, please just put it in the chat box, and I think Omar will pass on the questions to me in case I miss something. Okay, so I'll start. So first of all, I'll start with the very basics. So here you can see I've drawn a few examples. So every living thing, including animals, birds, plants, everything is made up of cells. So cells are the basic unit of life, and we are made up of cells. Everything starts with a single cell, which is of various types. So each and every cell has a few components: DNA, RNA, and proteins. So DNA, RNA, and proteins, these three components are the most important. Okay, so uh, now you can think of it like, yeah, sorry, I'll just go back. Yeah, yeah. So DNA is the basic blueprint. So you can think of it like you are supposed to build your house from scratch. तो घर आपको अपना एकदम, आपके पास कुछ भी नहीं है, उससे आपको घर बनाना है और उस घर में रहना है, तो आप क्या करोगे? तो सबसे पहले डीएनए है. डीएनए आपका बेसिक प्लान, उसमें पूरा लिखा है कि आप अपना घर कैसे बनाएंगे, घर के अंदर कैसे रहेंगे, तो वो सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको डीएनए से. फिर आरएनए से के अलग अलग टाइप होते हैं, लेकिन उनका क्या काम है मैं बताती हूँ. तो जैसे आपको घर बनाने के लिए ईंट लगेगा, लकड़ी लगेगा दरवाजे बनाने, और टाइल लगेंगे छत बनाने. तो वो सब चीज़ों के लिए आपको पहले एक फैक्ट्री लगेगी जिसमें टाइल बनेगा, ईंट बनेगा, है ना. तो वो सारा काम होता है आरएनए का. और फिर प्रोटीन्स जो है वो मशीनरी है, वो बाकी काम करते हैं. जैसे आपका दरवाज़ा बनाने के लिए लकड़ी फैक्ट्री से लेकर दरवाज़ा बनाया, या ईंट लेकर दीवार बना दिए, या टाइल्स लेकर छत बना दिया, तो ऐसे है. तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है. तो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन. अब क्या है कि हमारे जो, मैं आगे जाती हूँ थोड़ा. हाँ, तो हमारे जैसे वायरसेस होते हैं, हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करते, तो वो क्यों करती हैं? तो वायरसेस के पास पूरी मशीनरी नहीं होती. तो उनके पास क्या होता है कि मैं थोड़ा पीछे जाती हूँ. तो उनके पास एक
चाबी टाइप ऑफ होती है। देखो यहाँ पे ऐसे जो स्पाइक्स होते हैं उनको क्या होता है कि हर वायरस या हर बैक्टीरिया भी उनका पास कुछ ना कुछ एक होता है जो चाबी की तरह होती है, जिसके थ्रू वो आपके घर में घुस सकता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपका खुद का एक हाँ, आपका खुद का जो घर है आपने बना दिया किस तरह से और आप रहने लगे हो, लेकिन ये वायरस या बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो आपके घर के अंदर घुसकर आपके सामान को यूज करके वहां रहने लगते हैं। ठीक है, तो आपको वहां रहने के लिए जगह कम पड़ने लगती है, तो उस तरीके से वो अंदर घुस जाते हैं। तो अभी हमको अपने आप को बचाना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। हमारी इम्यून सिस्टम हमें बचाती है। तो हम्म, एक मिनट, मैं दूसरा वीडियो चला रही हूँ। एक ओके, शेयर। ठीक है, तो अभी आपको मैं एक बार रिकैप करती हूँ। तो हमारे पास पूरी मशीनरी है हमारे सेल्स में। हमारे पास डीएनए है, आरएनए है और प्रोटीन है, और उससे हम अपना घर बना के उसमें रहते हैं। और फिर वायरसेस क्या करते हैं, उनके पास एक चाबी होती है जिसके थ्रू वो हमारे घर में घुस के हमारा सामान यूज़ करने लगते हैं और हमें वहाँ रहने नहीं देते। तो जब क्या होता है कि हम अकेले तो ऐसे जो ऐसे डाकू है जो घुस के ऐसे रहने लगते हैं घर के अंदर, हम उससे अकेले तो नहीं लड़ पाते, हमारे पास ट्रेनिंग शायद नहीं है। तो क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा अपार्टमेंट बिल्डिंग है और फिर उसके बाहर सिक्योरिटी गार्ड लगे होते हैं जो उनको बचाते हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम ऐसा ही कुछ है, आपको समझ में आना है तो उसमें वो बना होता है वाइट ब्लड कॉर्पसेल से, WBC जिसको बोलते हैं, आपने सुना ही होगा। तो WBC एक टाइप ऑफ ब्लड सेल है जो बोन मैरो में बनते हैं, और ये इम्यून सिस्टम वाले सेल्स ही हैं। तो इनके बहुत सारे अलग टाइप है, लेकिन उनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। लेकिन उनके मेजर दो टाइप के होते हैं, एक फैगोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो ये हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। हमारे जो बॉडी है उसको आप बिल्डिंग की तरह समझना, और इम्यून सिस्टम उसके सिक्योरिटी गार्ड्स है। तो आगे, हाँ, तो अभी जब वायरस होता है उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि वो एक डाकू है, उसके हाथ में एक बॉम्ब होता है और एक उसके पास एक पासकोड होता है जो मैंने बताई थी आपको, चाबी की तरह है। तो एक फैगोसाइट टाइप ऑफ सेल है, WBC है, वो क्या करते हैं, इनका नाम जो है वो इस ग्रीक शब्द से लिया है। ग्रीक में फागोस का मतलब होता है खाना। तो वो एक्चुअली क्या करते हैं, वो पूरे बिल्डिंग में ऐसे ही राउंड पे चलते रहते हैं, बिल्डिंग के अराउंड, है ना, सिक्योरिटी गार्ड्स। वैसे ही हमारे अंदर, हमारे ब्लड में, खून में फैगोसाइट्स ऊपर नीचे जाते हैं, यहाँ वहाँ ढूंढते हैं कि कोई घुस के आया है या नहीं। फिर जैसे ही पहचान लेते हैं वो उनको खाने लगते हैं, तो वो खा लेते हैं उसको। और फिर आ, उनके पास जो पासकोड होता है वो पेश कर पाता है फिर दूसरे सेल्स को। ठीक है, तो अब बता सकता है कि हियर इज द पासकोड, लेकिन वो बॉम्ब फिर भी एक्टिव है, तो बॉम्ब को हमें डिफ्यूज भी करना है ना। तो उसको डिफ्यूज करने के लिए दूसरे सेल लग जाते हैं। टू पार्टिसिपेंट्स रेज्ड हैंड, आपको कोई क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं, मैं देखती हूँ। चैट बॉक्स क्यों नहीं खुल रहा? We don't have questions as of now. आप ओके ओके, लास्ट कंटिन्यू में हम करूँ? क्वेश्चंस लेंगे। जी जी ओके, जी, कंटिन्यू हाँ करिए। हाँ हाँ, ठीक है, किसी ने रेज हैंड किया तो मुझे दिखाना, एनीवे ओके। तो अभी बॉम्ब तो फिर भी एक्टिव है, तो क्या होता है कि किलर टी सेल होते हैं
वो ये जो फैगोसाइट ने खाया है और उसके अंदर बॉम्ब अभी भी एक्टिव है, उसको वो मार देते हैं। और फिर उनके पास जो पासकोड होता है वो हेल्पर टी सेल लेकर जाता है। फिर हेल्पर टी सेल जब लेकर जाता है पासकोड, वो मिलता है बी सेल्स को। ठीक है, तो ये बी सेल्स क्या है, ये देखने पर वो एक्टिवेट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, तो एंटीबॉडी क्या है, वो एक ऐसा प्रोटीन है जिसका काम है बॉम्ब को डिफ्यूज करना, आप समझ सकते हो। तो ये जो है फिर क्या करते हैं, अलग अलग जो नए आते हैं और भी अंदर रहेंगे ना, और भी वायरस वगैरह, तो उनके पास जाके सेम टाइप ऑफ वायरस के लिए, तो हर वायरस का अपना एक यूनिक पासकोड होता है, हर बैक्टीरिया का भी अपना यूनिक पासकोड होता है। तो उसके हिसाब से वो पासकोड लेकर जब जाते हैं हेल्पर सेल बी सेल, उसके हिसाब से एंटीबॉडी बनाते हैं। और एंटीबॉडी बनने के बाद आप देख सकते हैं वो उसको डिफ्यूज कर देते हैं, और फिर फैगोसाइड आके सबको खा लेते हैं और सब डाइजेस्ट हो जाता है। उसके साथ ही फिर क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपको जब भी इन्फेक्शन होता है किसी चीज़ से, तो सबसे पहले आपको बुखार होता है, सबसे जनरली लोगों को बुखार पहले होता है। तो बुखार क्यों होता है, क्योंकि जो वायरस होता है या बैक्टीरिया होता है, उनके लिए क्या है, उनको हमारा बॉडी का टेम्परेचर अच्छा लगता है, उनको हमारे घर में रहना क्यों पसंद है, क्योंकि वहाँ उनके लिए कंफर्टेबल है, वो आसानी से अपना काम कर सकते हैं। तो उनको हमें मारना है, भगाना है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या है, उनको बहुत गर्मी लगती है और गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते, और या तो वो निकल जाते हैं या मर जाते हैं, वायरस या बैक्टीरिया जो भी है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें बुखार आता है। फिर और एक क्या है कि अभी जब उन्होंने हाईजैक किया है तो बहुत सारे सेल हैं वो मर भी जाते हैं। तो जब वो मरते हैं उनके अंदर जो भी होता है मटेरियल, सेल्स के अंदर जो भी प्रोटीन्स है, आरएनए, डीएनए और कुछ केमिकल भी होते हैं साइटोकाइंस करके, वो सारा टिश्यूज में बाहर निकलने लगता है। तो इससे क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, वो स्वेलिंग को हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ जलने की सेंसेशन भी होती है, तो इसीलिए आपको कभी कभी पेट में भी इन्फ्लेमेशन होता है, जब भी स्टमक इन्फेक्शन होता है आपको, तो वहाँ पे फिर आपको एकदम अनकंफर्टेबल लगता है ना, वो जलने जैसा, एसिडिटी अलग होती है, ये अलग होता है, आपको एकदम दर्द होता है पेट में, तो वो इन्फ्लेमेशन होता है। तो वो इन्फ्लेमेशन होने पर भी एक सिग्नल निकलता है जिससे फैगोसाइट जाते हैं, फैगोसाइट जाके उनको खाने लगते हैं। तो ये हमारा बेसिक इम्यून रिस्पॉन्स इस तरीके से होता है। अब तो इम्यून सिस्टम का ये मेन रिस्पॉन्स है। एक रिकैप कर लेती हूँ मैं, कि जब सबसे पहले ये कोई नया वायरस या बैक्टीरिया अंदर घुसता है, तो फैगोसाइट्स एक तरह के WBCs है जो उनको खाते हैं। फिर उनके पास जो पासकोड है वो दिखाने लगते हैं, वो पासकोड देखते ही सबसे पहले किलर टी सेल्स जाके उनको मारते हैं। हेल्पर टी सेल्स वो पासकोड लेकर जाते हैं बी सेल्स के पास, और बी सेल बनाते हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज इज लाइक वो बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए वो पासकोड यूज करके जाके उसके अटैच होते हैं, और फिर फैगोसाइट्स फिर से जाके वो खा लेते हैं। तो अब स्पेशलिटी क्या है हमारे इम्यून सिस्टम की, कि बी सेल्स जो होते हैं उनको एक मेमोरी भी होती है। अब जैसे इस एक बार मुझे किसी चीज़ से बुखार हो गया, फॉर एग्जांपल चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स से मुझे बीमारी हो गई, मुझे बहुत बुखार आया, मुझे मेरे स्किन पे बहुत सारे रैशेस वगैरह भी आने लग गए, तो वो सब कुछ हुआ। फिर मेरे WBCs ने ऐसे बहुत लड़ा और फिर मैं ठीक हो गई। ठीक होने के बाद मेमोरी बी सेल्स को याद रहता है कि ये एक बार हुआ था, तो नेक्स्ट टाइम जब भी सेम टाइप का आते हैं वायरस, तब वो मेमोरी बी सेल्स को पता चलता है कि हाँ ये उसी टाइप का है, उसके पास सेम पासकोड है, और फिर वो तुरंत एंटीबॉडी बनाने लगते हैं। तो जब सेकेंड टाइम आपको ऐसे सेम चीज़ से कुछ होता है तो आप बीमार भी नहीं पड़ते।
तो कभी कभी जब आप बीमार पड़ते भी हो, जैसे बुखार होता हो वगैरह, तो वो बुरी बात नहीं है, उसका ये मतलब है आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, आपको कुछ नया टाइप का इन्फेक्शन हुआ है और कुछ भी नहीं। तो बीमार होना कभी कभी अच्छी बात भी है, तो बीमारी से डरना नहीं चाहिए, ये इसका मतलब है आपका इम्यून सिस्टम चल रहा है। अब लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी कभी इम्यून सिस्टम भी ठीक से काम नहीं करता, तो उसके भी अलग टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, वो भी मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। तो हाँ, तो कभी कभी वो ज़्यादा ही ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम होता है हमारा, हमेशा लड़ने के लिए तैयार, किसी से भी लड़ने के लिए तैयार। तो उस केस में क्या होता है, एक तरीके का है एलर्जी। तो एलर्जी क्यों होती है आपको? तो नॉर्मल सी चीज़ें होती है, जैसे वो फूलों से पोलन निकला होगा, या आपने कुछ मूंगफली खाई, तो वो उसमें से कुछ मटेरियल से बी सेल्स को पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि नहीं, ये कुछ तो गड़बड़ हुआ है, दुश्मन घुस के आया है, और फिर वो मास प्रोडक्शन करना शुरू कर देगा एंटीबॉडीज का। तो आपको ज़रूरत भी नहीं है तो भी एंटीबॉडीज बनेंगे। या फिर जब ट्रांसप्लांट होता है, जैसे किसी को अगर कैंसर हुआ है, ब्लड कैंसर, तो फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ट्रीटमेंट करते हैं जनरली। तो बोन मैरो हमने किसी और से लेकर पेशेंट में डाल दिया, तो पेशेंट को हम होस्ट बोलते हैं, और जिसने दिया वो डोनर हो जाएगा, है ना। तो क्या हुआ कि बोन मैरो डोनर से लेके हाँ, होस्ट में डाला, और फिर होस्ट में क्या होता है कि डोनर का अगर वो बोन मैरो ठीक से फिट नहीं हुआ, मतलब जो बोन मैरो है उसका अच्छे से मैचिंग नहीं हो रहा है, तो क्या होता है कि उसको लगता है कि जो होस्ट का बॉडी है, पेशेंट की जो बॉडी है वही उसका दुश्मन है, तो वो बहुत सारे WBCs बनाने लगता है जो सारे होस्ट के सेल्स को मारने लग जाते हैं। तो ऐसे है, जैसे अभी अगर आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी जो बिल्डिंग की सिक्योरिटी गार्ड है उसके बहुत सारे नंबर बन गए, और वो अब आपको ही दुश्मन समझने लग गया और आपको ही मारने के लिए आ गए, वैसे ही कुछ आप समझ सकते हैं। या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है कि ऐसे ही नेचुरली आपके जो बोन मैरो से आपके खुद के WBCs आपके कुछ दूसरे सेल को दुश्मन समझते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप के इम्यून डिसऑर्डर्स होता है। तो मैं रिकैप करती हूँ, एक एलर्जी होती है। तो एलर्जी में आपको कोई छोटे मोटे कुछ भी खाने से या सांस लेने से, कुछ एनवायरमेंटल जो इतना हार्मफुल नहीं है, आपको कुछ तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए, बट वो देख के आपके बी सेल्स तुरंत एंटीबॉडी बनाने लगते हैं, जो सब जगह जाके अननेसेसरी आपका रिस्पॉन्स होता है। तो अननेसेसरीली आपको बुखार होती है, आप छींकने लगते हैं, ऐसी चीज़ें। और फिर है बोन ट्रांसप्लांट होने से आपका जो बोन मैरो है वो किसी और से लिया गया है, जब वो ठीक से मैच नहीं होता तब जो है वो बोन मैरो बहुत सारे WBCs बनाते हैं जो आपके सेल्स को अटैक करने लगता है। या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसमें आपके खुद का जो WBCs है वो आपके कुछ सेल्स को अटैक करने लगते हैं। तो इसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में सबसे कॉमन आपने सुना होगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो उसमें क्या होता है कि आपके जो नीज में वो सेल्स होते हैं, जिसका वो कार्टिलेज बनता है आपके नीज के अंदर, तो वो नीज या फिर जॉइंट्स में भी, तो वो जाके वो कार्टिलेज को ही मारने लगते हैं, कार्टिलेजेस जो सेल्स होते हैं। तो क्या है कि आपका जॉइंट्स बहुत वीक हो जाते हैं और फिर आप चल नहीं पाते, बहुत दर्द होने लगता है। तो बहुत ही पेनफुल सिचुएशंस है ये सारे। और कुछ केसेस में, जैसे एलर्जी में तो फिर भी आप अपने आप को उन चीज़ों से दूर रख सकते हैं, लेकिन जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो गया या फिर आर्थराइटिस हो गया, तो इसके केस में आपको एक ही इलाज है, इम्यूनो सप्रेसेंट यूज़ करना पड़ता है। तो इम्यूनो सप्रेसेंट क्या है, वो इम्यून सिस्टम को थोड़ा कमज़ोर कर देते हैं, तो इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं होता। ठीक है। तो
प्रॉब्लम क्या है कि जब कोई नया इन्फेक्शन हो, जैसे कोरोना वायरस हो गया, तो इनके अगेंस्ट जब आपको लड़ना हो तब प्रॉब्लम होने लगता है, क्योंकि अब आपको फिर आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है इम्यूनोसप्रेसेंट यूज करने से। तो इसीलिए क्या करते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह में पेशेंट को कुछ टाइम के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट देना बंद कर देते हैं, जिनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है उनको। तो फिर एक मिनट। हेलो, या आप वॉचमैन को दे देंगे? हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। हाँ, सॉरी कॉल आ गया था। तो फिर क्या है कि जब नया इन्फेक्शन होता है तो आपका इम्यून सिस्टम इम्यूनोसप्रेसेंट पे वीक होता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हम इम्यूनोसप्रेसेंट देना बंद कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। तो उनको बहुत तकलीफ होगी, जोड़ों में दर्द होगा, लेकिन वो इन्फेक्शन फिर भी फाइट कर पाएंगे। लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसे केस में ये भी बहुत डेंजरस है, क्योंकि आपके सारे ही सेल्स को अटैक करने के चांसेस है। तो इसीलिए इन लोगों को कोरोना वगैरह जैसे नए इन्फेक्शन जब होते हैं, इन लोगों को सेफ रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर कभी कभी इम्यून सिस्टम नेचुरली भी वीक होता है, जैसे आपके एज के साथ साथ स्लोली आपके इम्यून सिस्टम सारे ही सेल्स थोड़े वीक होने लगते हैं, वैसे इम्यून सिस्टम भी आपका वीक होने लगता है। और फिर हमारे और भी केसेस है, जैसे डायबिटीज़ जब लोगों को होता है तो डायबिटीज़ के अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस है। तो एक कॉम्प्लिकेशन उसमें से है कि इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो ये सारे होते हैं। फिर आपको HIV इन्फेक्शन से भी, HIV भी हमारे इम्यून सिस्टम को ही टारगेट करके उसको वीकन कर देता है। तो ये सब होने से क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है, आपके सेल्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, सेल्स के अंदर घुस के वायरस मार देते हैं उनको, फिर इन्फ्लेमेशन होने लगता है। बट वो कंट्रोल करने के लिए वहाँ फैगोसाइड जाके उसको खाने नहीं लगते, तो फैगोसाइट पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि उतने फैगोसाइट्स हैं ही नहीं। तो इसीलिए इन्फ्लेमेशन अनकंट्रोल्ड हो जाता है। तो इनके लिए केस में भी फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनको बचाना, जब नया कोई इन्फेक्शन हो। तो इन लोगों को भी सेफ रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब क्या है कि इसमें फिर लोग क्या करने लगे हैं आजकल, आपने बहुत सुना होगा कि इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं, मार्केट में आने लग गए हैं, कि वो कहते हैं कि हम आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना देंगे आप, और फिर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने से आपको बीमारी नहीं होगी, आप बीमारी नहीं पड़ेंगे। तो ऐसे काइंड ऑफ थिंग्स वो बेचने लग गए हैं मार्केट में। तो इसके बहुत सारे और भी क्लेम्स है कि आपको इन्फेक्शन होगा ही नहीं, ऐसे भी कोई कोई लोग बोलते हैं ये इम्यूनिटी बूस्टर से। तो इसके बहुत सारे अलग टाइप है। मैं तो आज आपको बस 2-3 एग्जाम्पल बताने वाली हूँ कि ये क्यों काम नहीं करते। तो क्या है कि एक काढ़ा के बारे में आपने सुना होगा, हल्दी दूध के बारे में आपने सुना होगा। तो काढ़ा में क्या है, आपके पास लौंग है, आपके पास अदरक है, और फिर तुलसी है। तो ऐसे सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब वो क्या है, उनके एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब वो आपका जब सूजन होता है, वो इन्फ्लेमेशन होता है, वो उसको थोड़ा कम कर देगा नेचुरली। तो क्या होता है कि आपको थोड़ा तकलीफ कम होने लगता है। जैसे आपको नॉर्मली जब सूजन होते हैं, जैसे पेट में होगा अगर इन्फेक्शन, तो पेट में आपको जलन होगी तो वो नहीं होगा, या फिर आँखों में होगी तो वो भी कम होगा। फिर कोरोना के केस में कॉफिंग बोलते हैं, तो कॉफिंग बहुत होती है, खांसी होती है, तो खांसी को भी वो थोड़ा ठीक कर देगा, जो वहाँ पे सूजन हो रहा है उसको ठीक करेगा। तो उस वे में वो क्या है कि वो आपके जो सिम्टम्स है, जो दिखने वाले लक्षण हैं बीमारी के, तो वो थोड़ा कम करते हैं। लेकिन इनका कोई भी इफेक्ट आपके WBCs पे नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि ये खाने से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, बस आपका जो भी दिखाई देता बीमारी के लक्षण वो थोड़े कम होंगे।
फिर और एक सबसे हम मम्मियों का फेवरेट है हल्दी दूध देना। तो हल्दी में क्या है कि एक एक्टिव मॉलिक्यूल है कर्क्यूमिन। तो कर्क्यूमिन क्या है, वो एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी तो आपको समझ आ गया है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, अभी जैसे सारे जो इम्यून सेल्स है वो लड़ाई कर रहे हैं, तो लड़ाई करते करते मर गए, तो उन क्या होता है उनमें से ऑक्सीजन का एक हार्मफुल टाइप है फ्री रेडिकल। तो जब वो लड़ने लगते हैं वो ये भी यूज़ करते हैं लड़ाई करने के लिए, ये स्पेशल इम्यून सेल्स। तो वो फिर फ्री रेडिकल्स रिलीज करते हैं, और क्या है कि फिर उनको ये जो है अगर आपके टिश्यू में रिलीज हो गया तो इनको मतलब ये भी काफ़ी हार्मफुल है आपके सेल्स के लिए भी, आपके बाकी सेल्स के लिए। तो ये बाकी सेल्स तक ना पहुंचे तो उनको खाने के लिए ये एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल्स आके ये सारे क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल्स को क्लियर कर देते हैं। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि अ, हल्दी आपके बाकी सेल्स को डैमेज से बचाएगा। अब हल्दी के केस में क्या है कि और एक चीज़ है, कुछ प्रिलिमिनरी स्टडीज जिसे बोलते हैं, एक दो मतलब एकदम ही स्टार्टिंग के कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तो उसमें उन्होंने देखा कि वो इम्यून सेल्स के जो नंबर है वो कभी कभी चेंज कर पाते हैं, पर इसका कोई पूरा गारंटी या पूरा प्रूफ नहीं है। ठीक है, तो इवन इफ अगर वो सच निकला कि हाँ ये हल्दी से आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स के नंबर बढ़ जाएंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे। बताओ क्यों? क्योंकि आपको पहले कभी अगर किसी चीज़ से इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो आपका इम्यून सिस्टम को उसको लड़ने के लिए टाइम लगेगा और आप थोड़ा सा बीमार पड़ोगे। इवन इफ आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो, थोड़ा सा आपको बुखार वगैरह होता ही है जब नया टाइप का इन्फेक्शन होता है। तो हल्दी दूध पीना अच्छी बात है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको नया इन्फेक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, फिर और एक बहुत पॉपुलर चीज़ आया था रिसेंटली, मैंने सुना कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक होम्योपैथी की दवाई है आर्सेनिकम एल्बम 30। तो आर्सेनिकम एल्बम 30 के केस में क्या है कि लोग बोल रहे हैं कि ये खाने से आपको इन्फेक्शन होगा ही नहीं, आपको कोरोना होगा ही नहीं। तो ये इसके कोई क्लेम मतलब इसके लिए कोई भी साइंटिफिक प्रूफ हमारे पास है ही नहीं कि ये इस तरीके से काम करता है। तो आपको जो भी पता है प्रिवेंटिव मेजर्स, हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग, ऑल दोस थिंग्स, तो वही हमारे पास है फिलहाल एज प्रिवेंटिव मेजर्स। तो आप वही फॉलो करना, और आपको अगर काढ़ा पीना या हल्दी दूध पीना है तो ये अच्छी बात है, इनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन याद रखना कि नए इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको बस हेल्दी हाइजीनिक प्रैक्टिसेस रखनी चाहिए। तो मैं शॉर्टली आपको इन्फेक्शन के दूसरे तरीकों के बारे में भी बताती हूँ। तो अलग अलग इन्फेक्शंस के अलग टाइप्स होते हैं। एक है फूड बॉर्न, जो खाने में के थ्रू फैलते हैं। जब आपका खाना खुला रखा हो, मक्खी आके बैठ गई, तो मक्खी पता नहीं कहाँ से आके बैठी, तो उसके वजह से आपको वो इन्फेक्टेड फूड मिल गया, इन्फेक्टेड फूड खा के बीमार हो गए, तो वो फूड बॉर्न हो गया। वाटर बॉर्न, आपने कॉलेरा के बारे में सुना होगा, टाइफाइड के बारे में। तो वो पानी में मतलब जैसे बहुत सारे लोग बाहर करते हैं टॉयलेट, तो वो बहुत गलत बात है, क्योंकि जो भी इन्फेक्टेड लोग हैं जब उनका वहाँ पानी में चला गया तो इन्फेक्शन पानी के थ्रू फैल सकता है। तो वो भी एक है वाटर बॉर्न डिजीजेस। फिर एयर बॉर्न, मतलब हवा से ही कैसे भी आपको हो सकता है। तो ये अलग अलग है तरीके। तो इसके केस में वो कोरोना के केस में वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है, तो खांसने या छींकने के कांटेक्ट में आने से होता है। तो हाथ क्यों धोने बोलते हैं, क्योंकि आप जहाँ जो सरफेस टच कर रहे हो, अगर किसी ने वहाँ पे बाय मिस्टेक छींका है या खांसा है तो आप वहाँ हाथ लगाएंगे तो आपके ऊपर भी आ जाएगा। इसीलिए बोलते हैं रेगुलरली हाथ धोने और मास्क पहनने। तो वो सारी चीज़ें हैं। फिर अब अगर इम्यूनिटी बूस्टर काम नहीं करते तो फिर क्या काम करेगा? अब
पूछ सकते हो। तो वैक्सीन्स बहुत अच्छे से काम करते हैं, ये बहुत पहले से प्रूवन है। तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में वैक्सीन के बारे में बता के फिर वहीं पे एंड कर देती हूँ। तो वैक्सीन्स के केस में क्या है कि सबसे पहले वैक्सीन हमने डिस्कवर किया था 1796 में, एडवर्ड जेनर नाम के एक डॉक्टर ने डिस्कवर किया था। तो उन्होंने देखा कि उनके पास बहुत सारे पेशेंट आते थे, तो उस टाइम पे सबसे डेंजरस चीज़ था स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स से बहुत बच्चे बहुत कम उम्र में गुजर जाते थे। तो उन्होंने देखा कि लेकिन जहाँ पे मतलब वहाँ पे पास में एक डेयरी फार्म थी, मतलब जहाँ पे लोग दूध निकालते हैं गाय से और बेचते हैं। तो जो औरतें वो दूध निकालने का काम करती थी, उनको नहीं हो रहा था स्मॉल पॉक्स और बाकी लोगों को होता था। तो उन्होंने सोचा क्यों, फिर देखा कि जो भी ऐसे थे उनको एक्सपोजर हुआ था काउ पॉक्स से। तो काउ पॉक्स स्मॉल पॉक्स जैसा ही वैक्सीन है, उनके पास सेम पासकोड या एंटीजन जिसको बोलते हैं, पासकोड सेम था उनका। तो उनको लगा कि हाँ ये शायद हम यूज़ कर सकते, तो उन्होंने फिर काउ पॉक्स थोड़ा सा लेकर इंजेक्ट कर दिया एक छोटे से लड़के में। अब काउ पॉक्स क्या है कि काउ पॉक्स का पासकोड सेम है, लेकिन वो उतना स्ट्रांग नहीं है जितना स्मॉल पॉक्स है। तो हमारी इम्यून सिस्टम क्या उससे आसानी से लड़ सकती है, ठीक है। तो वो होने पर क्या हुआ, वो लड़के को फिर स्मॉल पॉक्स नहीं हो पाया। तो उससे उनको पता चला और फिर उन्होंने सबसे पहला वैक्सीन बनाया। तो वैक्सीन का क्या आइडिया है, स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। अब जैसे जब आपको खतरा होने वाला है किसी से, आपके कोई दुश्मन आके आपको पीटने वाला है, तो आप अपने आप को, आपको पता है ये बात, तो आप अपने आप को ट्रेन करेंगे। तो ट्रेन करने के लिए आप उससे लड़ेंगे जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आप उसके साथ ट्रेन कर पाएंगे। तो जैसे सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाएगा ना कैसे लड़ते हैं, तो उसी तरह की से आपके इम्यून सिस्टम को ट्रेन करने वैक्सीन दिया जाता है। तो वैक्सीन है ऐसा चीज़ है जो आपके बॉडी को एक्चुअली हार्म नहीं करेगा, लेकिन इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर देता है। तो वैक्सीन के अलग अलग टाइप हैं। सबसे इफेक्टिव जो है वो है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। इसका मतलब क्या है कि जैसे स्मॉल पॉक्स के केस में काउपॉक्स से इन्फेक्शन कर दिया, तो काउपॉक्स भी इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन उसका आपके बॉडी पे ज़्यादा असर नहीं होगा। तो इस तरीके से उसका पासकोड सेम रहता है, लेकिन तो वो इंजेक्ट करने से क्या होगा, आपका इम्यून रिस्पॉन्स हो जाएगा। और फिर जब स्मॉल पॉक्स जैसे उससे बड़ा खतरा आएगा, आप रेडी है, आपके पास एंटीबॉडी भी रेडी है, आपके बी सेल्स तुरंत अटैक करके एंटीबॉडी बना के अटैक करके वो ख़त्म कर देंगे वो इन्फेक्शन। तो ये सबसे इफ़ेक्टिव मेथड है वैक्सीनेशन का। इसका प्रॉब्लम ये है कि जिसकी इम्यून सिस्टम वीक है, तो वो उससे इतना अच्छे से नहीं लड़ पाएंगे, तो वो ही प्रॉब्लम है। और इसीलिए जो बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है जैसे पोलियो है, हेपेटाइटिस ए है, तो इनके केस में इनएक्टिव वैक्सीन दिया जाता है। तो इनएक्टिव वैक्सीन के केस में क्या करते हैं, मरा हुआ जो वायरस है या मरा हुआ बैक्टीरिया है उसको इंजेक्ट करते हैं। तो उसको या तो हीट से मारते हैं गर्म करके, या कोई केमिकल एजेंट से, और फिर इंजेक्ट कर देते हैं। तो उसके केस में भी आपका इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि अगर फैगोसाइट्स उसमें से पासपोर्ट नहीं निकाल पाए तो आप रिस्पॉन्स मतलब बी सेल्स को पासपोर्ट नहीं मिलेगा, तो वो उधर ही उसी स्टेप में वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए आपके इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए बार बार बूस्टर शॉट लेना पड़ता है। आपने सुना होगा पोलियो के लिए हर साल बच्चों को मतलब अलग अलग बूस्टर शॉट देते हैं, तो टीका लगाना बोलते हैं ना, बार बार बच्चों को लेकर जाते हैं सेम वैक्सीन के लिए। तो वो इसीलिए है क्योंकि वो इतना इफेक्टिव नहीं है, तो बूस्टर डोजेज लगता ही है। बट ये एडवांटेज इसका ये है कि आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों को भी भेज सकते हैं, जिनकी इम्यून सिस्टम वीक है उनको भी ये इससे इंजेक्शन दे सकते हैं। या ओरल वैक्सीन भी होता है, तो पोलियो के केस में जैसे, तो वो ओरली भी दे सकते हैं, तो उनका बॉडी सेफ रहेगा, वो
मतलब उनको इन्फेक्शन नहीं होगा इससे। फिर और एक टाइप का है जिसको हम बोलते हैं सब यूनिट वैक्सीन। तो सब यूनिट वैक्सीन में क्या करते हैं, वायरस या बैक्टीरिया जो भी है उसका कोई एक प्रोटीन जो हमें पता है क्या है, वो प्रोटीन ही इंजेक्ट कर देते हैं, पूरा वायरस या पूरा बैक्टीरिया नहीं होता इसमें। तो उसमें क्या होता है फिर ये हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा के केस में यूज होता है। तो उसमें फिर आपका इम्यून रिस्पॉन्स उस पर्टिकुलर प्रोटीन के अगेंस्ट होता है। तो वो प्रोटीन जैसे मोस्टली क्या करते हैं, वो जो मैंने बताया था आपको पासकोड जो है वायरस के पास, वो पासकोड भी एक प्रोटीन होता है। तो वो जनरली वो पासकोड वाले प्रोटीन को यूज करते हैं इस ऐसे टाइप के वैक्सीन में। फिर आपने न्यूज़ में देखा होगा या कहीं सुना होगा, मुझे पता नहीं, mRNA वैक्सीन के बारे में। तो ये RNA वैक्सीन क्या करते हैं, ये RNA वैक्सीन आपको मैंने शुरू में बताया था कि हमारे मशीनरी के लिए वो कोड करते हैं और वो काम करते हैं। तो ये RNA वैक्सीन के केस में हम वो पर्टिकुलर RNA डाल देते हैं जो वायरस या बैक्टीरिया का हम वैक्सीन बनाना चाहते हैं। तो वही RNA डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं, तो हमारे बॉडी उस RNA से बने प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्स जनरेट करता है। तो ये अलग अलग टाइप के वैक्सीन हैं। DNA वैक्सीन बनाने की भी लोग अभी कोशिश कर रहे हैं, उस पर रिसर्च अभी भी चल रहा है। तो या तो वैक्सीन के बारे में हो गया। तो ये आपका इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी बूस्टर्स के बारे में है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। मैं इधर ही एंड कर देती हूँ। एक क्वेश्चन आया है, मैम, हाँ, व्हाई सम वैक्सीन्स फॉर सम डिजीजेस कंटेन हाफ डेड माइक्रोब्स एंड सम डू नॉट? या तो फिर मैंने बताया लाइव एटेन्यूएटेड अलग टाइप के हैं और इनएक्टिव अलग टाइप के हैं। तो इनएक्टिव के केस में हम, और सब यूनिट के भी, सब यूनिट तो 3 टाइप के बताए थे, लाइव एटेन्यूएटेड, इनएक्टिव और सब यूनिट। तो सब यूनिट के केस में आपको हाफ बोलते हैं, जैसे सिर्फ एक प्रोटीन दे देते हैं या सिर्फ एक। और इनएक्टिव के केस में पूरा डेड पैथोजन देते हैं। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि ये टेस्ट करते हैं ना वैक्सीन को अलग अलग स्टेजेस में। तो टेस्टिंग के टाइम हम देखते हैं पहले तो वो सेफ है या नहीं, और सेकंड चीज एफिकेसी। एफिकेसी मतलब कितना इफेक्टिव है। तो अगर कोई कोई केस में हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को पूरा वायरस या पूरा बैक्टीरिया का जरूरत पड़ता है, वरना रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता। फैगोसाइट्स खा लेते हैं, बट क्या है कि वो फैगोसाइट मरते नहीं है और उनको वो पासकोड मिलता नहीं है उसमें से, है ना। तो वो उतने में काम हमारा खत्म हो जाता है और फिर आगे नहीं जाता। अब मेमोरी वाला पावर बी सेल्स के पास है, तो वो बहुत ज़रूरी है कि वो बैक्टीरिया या वायरस खा के वो जो पासकोड है वो हेल्पर डी सेल लेकर जाए बी सेल के पास। तो वो स्टेप होने के लिए कभी कभी आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए आपको फुल बैक्टीरिया या फुल वायरस की जरूरत पड़ती है, या फिर लाइव एटेन्यूएटेड मतलब वो ऐसा ही कुछ जो जिंदा है लेकिन आपको इतना बुरा इन्फेक्शन नहीं दे पाएगा। तो लाइव एटेन्यूएटेड लेकिन डेंजरस है, जिसकी वीकन इम्यून सिस्टम है उनके लिए डेंजरस है। तो उस पर और भी टेस्टिंग लगता है, वो बहुत टाइम लगता है डेवलप करने। इनफैक्ट कोई कोई को 10-15 साल लगते हैं डेवलप करने के लिए, क्योंकि हम हर स्टेज पे टेस्टिंग करते हैं कि ये कितना हार्मफुल हो सकता है, कितना ऐसे। तो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। थैंक यू। सो एक और क्वेश्चन है, हाँ, मैम, प्लीज हैव योर कमेंट्स ऑन सेकंड जनरेशन वैक्सीन्स। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन तो क्या है कि फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ पोलियो, पहले मतलब एक मेथड मिल गया वायरस बनाने का, तो उसी को हम आगे डेवलप करते हैं। और अभी आजकल डीएनए वैक्सीन आ रहा है, आरएनए वैक्सीन आ रहा है। तो ये डेवलप करना थोड़ा फास्टर है, क्योंकि जो इनके केस में क्या है कि कंप्लीट वायरस यूज नहीं हो रहा है। तो उस केस में क्या है, वो रिलेटिवली कम डेंजरस हैं। तो हम कुछ स्टेप्स ऑफ टेस्टिंग या कुछ स्टेप्स ऑफ
मतलब कुछ स्टेप्स हम स्किप कर पाते हैं क्योंकि हमें पता है कि हाँ ये इतना डेंजरस नहीं है, तो वो साइड बाय साइड भी कर सकते हैं। जैसे करेंटली कोरोना के केस में ह्यूमन टेस्टिंग और एनिमल टेस्टिंग साइड बाय साइड हो रहा है। तो क्योंकि वो पूरा वायरस नहीं दे रहे हैं, वो पार्ट वायरस दे रहे हैं, तो इसीलिए इस तरीके से तो ओके, होपफुली सो कम टाइम। एक प्राइवेट क्वेश्चन आया है। ओके, एक हाँ, क्वेश्चन है, कैन अ वैक्सीन गिव समवन द डिजीज इट इज सपोज्ड टू प्रिवेंट? ओके, तो जस्ट लाइव का क्वेश्चन। एटेन्यूएटेड, हाँ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में वही, दैट इज व्हाई इट इज डेंजरस फॉर दोज विद अ वीक इम्यून सिस्टम, क्योंकि यू आर गिविंग either it is an asymptomatic strain or a weaker strain. Okay, so in healthy individual we generally test and all that, तो इतने टेस्टिंग के बाद हेल्दी इंडिविजुअल्स में मोस्टली इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। शायद एक फीवर भी होता है, आपको आपने सुना होगा, कभी डॉक्टर ने बोला होगा आपको शायद बुखार हो सकता है, तो एक फीवर वगैरह भी जनरेट होगा, बट जनरली हेल्दी इंडिविजुअल में इतना डेंजरस नहीं है। बट जिनका थोड़ा इम्यून सिस्टम वीक है उनके केस में वो इन्फेक्शियस हो सकता है। तो लाइव एटेन्यूएटेड का वही प्रॉब्लम है, बट सबसे स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स लाइव एटेन्यूएटेड से ही होता है। तो इसीलिए एक वैक्सीन लाइव एटेन्यूएटेड के केस में 10 साल लगता है डेवलप करने, क्योंकि बार बार टेस्टिंग होता है टू मेक श्योर कि वो हेल्दी इंडिविजुअल को नहीं मार पाएगा, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डीपीटी बूस्टर? डीपीटी आई थिंक डिप्थीरिया के लिए है। तो अगेन डिप्थीरिया के केस में इनएक्टिव वायरस या इनएक्टिव देते हैं, तो वो हीट किल्ड होता है। तो जिससे आपको इन्फेक्शन होता है नॉर्मली, उसको मार के मरा हुआ जो वायरस है या मरा हुआ बैक्टीरिया है उसको इंजेक्ट करते हैं। तो इसीलिए बूस्टर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इमीडिएटली रिस्पॉन्स जनरेट नहीं हो पाता। मैंने बताया जैसे प्रीवियस केस में भी फैगोसाइट आके वो खा लेता है, लेकिन पासकोड बी सेल तक नहीं पहुंचता, तो उसको डेवलप करने हम बूस्टर देते हैं। बार बार सेम काइंड ऑफ वैक्सीन देने से एक पॉइंट पे बी सेल एंटीबॉडी बनाने लगता है और फिर आपको इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई समटाइम्स एंटीबॉडीज फेल टू डिफेंड? Why sometimes they fail to defend? So for every particular antigen or every particular passcode, there is a unique antibody. So sometimes that antibody can work with a very similar passcode from someone else, and sometimes it cannot. So that is all a chance event. Okay, and what happens is, if your antibodies go and antibodies can only diffuse those cells. If the virus or the bacteria has some mutation through which it can free itself from the antibody and run away and start doing its own thing again, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो ओके, इसीलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्मा का, कैन बेबीज इम्यून सिस्टम हैंडल सो मेनी वैक्सीन? यस एक्चुअली यू मस्ट बी अवेयर कि बोलते हैं ब्रेस्ट फीड करने चाहिए बच्चे को। तो उसमें क्या होता है कि हमारे मम्मी के बॉडी में जो भी इम्यूनिटी है वो अपने एंटीबॉडीज ट्रांसफर करती है वाया ब्रेस्ट मिल्क टू द बेबी। ठीक है, तो वो लेकिन क्या है, वो बहुत ही टेम्पररी चीज है, क्योंकि जब आपके खुद के बॉडीज में एंटीबॉडी बनने लगते हैं ना, वो काफी टाइम तक रहते हैं, क्योंकि बी सेल मेमोरी सेल होता है ना, तो उसको पता होता है वो हर बार जब इन्फेक्शन होगा वो एंटीबॉडी बनाएंगे। बट जो ऐसे ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू आते हैं वगैरह, वो टेम्पररी है, उनका एक लाइफ होता है हर प्रोटीन का, तो एंटीबॉडीज की भी कुछ लाइफ होती है, तो वो थोड़ी टाइम के लिए ही होता है। तो हम स्लोली स्लोली टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन दे के वो बेबी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं। तो वो एक्चुअली जितना वैक्सीन ले सकता है उतना अच्छा है, जितने इन्फेक्शन हो सकते हैं सेफ इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, जैसे वैक्सीनेशन के केस में, वो उतना अच्छा होता है उनके लिए। ओके,
So we have another question, ma'am. Does our spleen have anything to do with our immune system? Spleen actually, so these are all these areas where the circulation wale fluids are stored. So spleen is one of those areas. So spleen also, our WBCs go and sit over there and they patrol over there, like that. They are stored temporarily, but mainly they are made in the bone marrow. Sorry, yeah, in the bone marrow. Okay, so we have one more question. Actually बहुत सारे questions है, but मैं पढ़ That's लेता हूँ. okay. If someone is expert in COVID-19, why it takes so long to confirm a successful vaccine for COVID-19? Ha. So, like I told you, the most effective vaccine takes almost 10 years to develop. What we are trying to do now is trying to have an effect which generally comes over 10 years of testing within a single year, in fact, a few months. So even if you are an expert, the problem is we don't know the side effects. So we have to make sure कि side effects नहीं होंगे कोई चीज़ से. तो इसीलिए उनको हम वैक्सीन डेवलप करते टाइम बहुत सारे अलग अलग टेस्ट करते देखने की कुछ नुकसान नहीं होता और फिर देखते हैं कि फ़ायदा होता भी है या नहीं. तो इट्स ऑल ट्रायल एंड एरर एंड इवन actually there's nothing called expertise, I would say, क्योंकि we are learning every day with new experiments we get new information, so time तो लगेगा. Okay. Ma'am, can a vaccine be prepared from organic material or simply an organism which will be virus tolerant? So there are one more type of vaccines which people have tried in the past, which is basically हम organism जैसे लाइक माउस तो नहीं यूज करते बट रैबिट को यूज किया गया पहले कि हम उसमें इंजेक्शन देके उसके एंटीबॉडीज यूज करते हैं. और वो लेकिन क्या है कि जैसे मैंने बताया वो उसका लाइफ बहुत कम होता है एंटीबॉडी का लाइफ. तो इट इज बेटर कि हम अपने खुद के बी सेल्स के थ्रू एंटीबॉडीज बनाएं. तो दैट इज अ फार मोर इफेक्टिव वैक्सीन, इसीलिए वो करते हैं. Okay. So, why persons with sickle cell trait are resistant to malarial infection? Oh, very interesting question. It's not related to the immune system, but I know, so I will answer. तो क्या है कि सिकल सेल एनीमिया में your cells have a deformity because of which they are not able to carry enough oxygen. Now the malarial parasite जो है, malarial parasite requires, उसको चाहिए बहुत सारा ऑक्सीजन. तो वो पसंद नहीं करता ऐसा एनवायरनमेंट, इसीलिए these people are resistant to malarial infections. In fact, sickle cell anemia became very common in geographical regions जहाँ पर मलेरिया बहुत कॉमन है, because it was our evolution to combat malaria in a way. इवन दो हमको भी तकलीफ होती है बट स्टिल. Great. So we have a question. Uh, Ma'am, what are the indications of weak immune system? ओके, तो वन ऑफ द वेरी कॉमन वंस इज दैट जैसे नॉर्मली आपको जब सर्दी होती है तो सर्दी के केस में आपको बार बार सर्दी क्यों होती है ये भी बताती हूँ मैं. तो कोल्ड वायरस जो है वो बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट करता है, तो इसीलिए हर साल थोड़ा अलग काइंड ऑफ इन्फेक्शन होता है. तो हमें हमारे लाइफ टाइम में 300 बार एटलीस्ट सर्दी होती है. तो सर्दी जब होती भी है हमारा बॉडी आराम से उसको 4 या 5 दिन में खत्म कर देता है. बट आपको अगर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा हो तो आपको बार बार भी होता हो, लाइक नॉर्मली साल में 2 बार होता है लोगों को मैक्सिमम, बट उससे भी ज्यादा अगर होता हो या फिर आपका लाइक जब आपको चोट लगती है आपका हीलिंग जल्दी नहीं होता, उसमें जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो कुछ कुछ साइंस है इसके. Uh, so we have one more question. Ma'am, what are the indications of weak immune system? We उससे पहले है what is uh,
मैस्थीनिया ग्रेव्स। और उसके अलावा मायस्थीनिया व्हाट इज, ग्रेविस। हाँ उसके अलावा व्हाट इज साइटोकिनिन स्टॉर्म। ओके, तो मायस्थीनिया ग्रेविस एक काइंड ऑफ कंडीशन है, उसके केस में आई डोंट नो मच बट आई कैन रीड एंड टेल यू। एंड साइटोकाइनिन स्टॉर्म के बारे में, इट्स एक्चुअली साइटोकाइन स्टॉर्म। तो साइटोकाइन स्टॉर्म मैंने बताया था कि जब सेल्स डाई, वो आप सराउंडिंग टिश्यू में अपने अंदर के सारे केमिकल रिलीज करते हैं और वहाँ पे सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है। तो one of those chemicals which gets released from the cells is cytokine. So cytokine signals the immune system. It triggers the production of phagocytes. It मतलब phagocytes और बनाने के लिए वो सूजन होने से वहाँ एक सिग्नल पास होता है, तो वो एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो सेल्स में से निकलता है। तो साइटोकाइन स्टॉर्म में क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलने लगते हैं, ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल साइटोकाइन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और हमारा जो रिस्पॉन्स है, जो सेल्स बनना, इम्यून सेल्स बनने का काम है, वो काफ़ी स्लो हो जाता है इन कंपैरिजन। तो ओवरवेल्म हो जाता है, इट्स लाइक अ स्टॉर्म ऑफ द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स इज देयर एंड यू आर नॉट एबल टू हैंडल इट, यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट। तो इट्स अ वेरी बिग इम्यून रिस्पॉन्स इसलिए। What about alpha interferons as immunity boosters? Alpha interferons as immunity boosters. Now, interferons are also they do promote the signaling by they do promote the signaling which will cause the cells to be produced, the immune cells to be produced. but इसका भी एक प्रॉब्लम है कि इम्यूनिटी बूस्टर मतलब ये मैक्सिमम आपके सेल प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, लेकिन जब नया टाइप का इन्फेक्शन हो रहा है आपको, तब it has to go through that whole process कि the phagocyte has to eat that and all that. So you will most likely fall sick anyway. If you have a healthy immune system, you do not need to take these things. In case of a weakened immune system, yes, these can be used, but it's best to have it with the help of your doctor. They will be the best who would advise you. So if someone is trying to promote this as immunity boosters just like that, please do not listen to them. Okay. So एक अच्छा क्वेश्चन है कि मैम, आई मीन मैं ऐसे बोलना चाहूंगा जो हम बोलना चाहते हैं। मैम, हमें व्हाट शुड बी आर इनटेक ऑन रेगुलर बेसिस जो इम्यूनिटी बूस्ट करते रहते, लाइक फूड वगैरह में क्या क्या हमें लेना चाहिए ऑन हाँ, रेगुलर सो बेसिस? रेगुलर बेसिस पे पहली बात तो स्ट्रेस इज ऑल्सो अ थिंग विच अफेक्ट्स आवर इम्यून सिस्टम, ये याद रखो। तो सबसे पहले ट्राई टू कीप योर माइंड काम and have regular exercise. Regular exercise also helps you remain healthy, and all those things also help keep your immune system really active. Okay, so diet also, keep a balanced diet. These are things you can do on a regular basis to boost your immunity. तो क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज नहीं करते, विसरल बेली फैट जमाता है। विसरल मतलब अपने जो टिश्यूज के पास होते हैं, मेन ऑर्गन्स के पास होते हैं, जैसे बेली फैट सबसे कॉमन होता है। तो जो बेली फैट वगैरह है, दे ऑल्सो रिलीज अ लॉट ऑफ साइटोकाइन्स विच कैन कॉज साइटोकाइन स्टॉर्म। ओके, सो उसके केस में वी डोंट वांट ऑल दोस थिंग्स, इसीलिए अच्छा अच्छे से एक्सरसाइज करना चाहिए। स्लीप ऑल्सो, इफ यू डोंट हैव इनफ स्लीप, योर टिश्यू रिपेयर विल नॉट हैपन। if tissue repair will not happen, so while your immune system is attacking infection, it will also damage your already weakened tissues. So you have to make sure that these things are there. There is a question, what are the parts included in immune system? What are the parts? So it is mainly the WBCs of various types. Okay, so and the body parts would be the spleen, lymph nodes, bone marrow. So spleen and bone marrow, they will just store these WBCs, but bone marrow, spleen and lymph nodes will just store these things, and bone marrow will produce the WBCs. Vaccination or hygiene,
which factor did contribute to decline of infectious diseases? बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. हाइजीन विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग देम इन द फर्स्ट प्लेस, तो आपको होगा ही नहीं, विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग. And vaccination will help in case of the need to fight, like whenever something new comes which spreads very easily, you can have a vaccine to fight against it. Now one more thing is there, that that doesn't mean you go overboard with hygiene, क्योंकि ऐसा भी है कि जो सॉइल में मिट्टी में जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एक्चुअली हार्मलेस है, लेकिन उससे हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होता है. And that studies have shown कि helps you your immune system build itself. तो क्या है कि उसके थ्रू आपको दूसरे जो इन्फेक्शन है वो थोड़े कम होंगे. ठीक है, तो Okay. इसीलिए मिट्टी में खेलना अच्छी बात है, बट मिट्टी खाना भी नहीं चाहिए. So that is also there, because many of these soil bacteria can cause stomach infections. So it's good to be a bit dirty. थैंक यू. सो बेसिकली स्कॉलर्स जिन्होंने सवाल पूछा, आप मल्टीपल सवाल ना पूछे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आपके जितने भी सवाल है डेफिनेटली हम मैम से ईमेल आईडी लेके आप उनको फिर अलग से ईमेल कर सकते हैं. यू विल रिस्पॉन्ड टू देम. सो आई एम रियली हैप्पी दैट यू आर ऑल इन्वॉल्वड. यू हैव सो मेनी क्वेश्चंस. So there is a question: is the polio vaccine linked to HIV? As far as I am aware, there is no particular link between the two. But if you want, I can email me the question. I'll read some more. If there's some new information, I'll tell you. Okay, there is a question: if someone gets a disease, then are the disease causing agents activated or inactivated? Is the first part of it. Second is if the agents are not, if the agents are one of the two, then why body needs vaccines for activation of its antibodies? Is body not activated by its main infection? Okay, so it depends on what the infection is, always. So if I am getting infected by chicken pox and I have antibodies against chicken pox I have developed, it is not going to help me fight cold or influenza. Okay, for everything there is different antigen, different passcode, and for each thing different antibody. Sometimes one antibody can do for two different things, sometimes it cannot. It depends on the passcode. Okay, so in that case, if you get a particular disease and you recover from it, then yes, you are you are in a way vaccinated from that disease. If the same thing happens, comes same agent infects you again, you will not get sick, but it will not protect you from other things. And isme you might be confused because sometimes somebody gets malaria twice or dengue twice. So in that case what happens is it is different kind of strain, which means it has mutated and a different type has infected you, but it's not the same type. So sometimes your body can fight it, sometimes it cannot. If the type is evolved so much, mutation होके इतना बदल गया है कि आप उससे लड़ नहीं पाएंगे, तो वो नहीं हो पाएगा. तो that is the thing. Should we take some medicines on regular basis to increase our immunity? No, you should not take any such medicines. Your immune system, especially I think at your age, is perfectly fine usually. You just need to maintain a very healthy lifestyle and make sure that you are not too stressed, so that your immune system remains healthy. It's very capable of fighting on its own, unless you have a particular disorder. If you have autoimmune disorders and stuff like that, you might already have been told by your doctor. So only such people need to take medicines. You don't need to take, if you are a healthy person, you don't need to take any medicine. Ma'am, what are the symptoms of spleenogamy? So most of the time it will be swelling. So you in that area you will have a huge swelling. It will obstruct other organs around it. So that is the main thing. You will have a lot of pain also. So generally you have X-rays and other things you will be able to check once you have a pain in that particular area. It will be somewhere in your chest region.
Okay. Uh, does exposure to different infections increases immunity? I mean, when a person who has never been exposed to some infection will not be ready for that, and a person who was exposed to the infection previously Yes, will be ready for yes. that. Actually, so if you get infected by something once, then in a way your immunity has improved because you have developed a new type of antibody which can potentially fight a few kinds of diseases. Uh, can medicine cure allergies? Yes, so immunosuppressants are a type of medicine. So what happens in that case is it's not curing your allergy; it is relieving the symptoms. So there are two things. Cure can either relieve the symptoms or it can help you overcome that allergy completely. So allergy, you will always have that allergic response. Your body naturally does not like that particular thing which makes you get allergy. But what the immunosuppressant does is when you are exposed to that and you are starting to develop too many like your immune systems are is going overboard, that time immunosuppressant will reduce that impact, so you will not be in so much pain and you will not have fever and all unnecessarily. How smoking affects immunity? Okay, so smoking, what it does is smoking, the main problem is it is highly it has a number of issues. So first of all, it depends on what you are smoking. Pure nicotine itself, it can cause cancer. It causes mutations in the cells. So in that case, what happens in case of cancer, your number of cells slowly increases, but after one point they stop functioning properly because even though the number is increasing, that particular cell type is not functional. For example, your phagocyte will not remain a phagocyte. You will have so many cells which look like phagocytes, but they've forgotten how to do their work. Okay, so that is a problem. Uh, so smoking can cause cancer, that is another one thing. The other thing is your breathing capacity, it reduces. So in case you get an infection which infects your respiratory system, then it becomes like in case of coronavirus, so what happens is your lung is not able to get enough oxygen for your body, and the virus is already damaging that property, so then you will get complications much more easily than a normal healthy individual who does not smoke. So there is one last question. I think we will definitely not take questions after that because बहुत सारे questions आ रहे हैं. I हाँ think they हाँ. are enjoying this whole thing with you. So there is a question: if diabetes isn't controlled even after insulation, what may be the problem? Okay, so diabetes even with insulin, if it's not controlled, now it so there are two things which are important to control diabetes. One is how much insulin is present. No, three things then. How much insulin is present, how effective that insulin is, and your diet. So your diet, if you are taking in a lot of sugary foods, but even though you have diabetes, what happens is, remember in diabetes the problem is enough of the sugar is not entering the cells, it is remaining behind in the bloodstream, and that causes a number of problems. Now insulin is that hormone which helps your cells to take up the sugar from the bloodstream. Now insulin, even if it is there, it has to be effective. Now many people have type 2 diabetes, which is insulin resistance. That means your body is not responding to insulin. Okay, your cells are not responding to insulin, so in that case you have to reduce your diet also. So this kind of thing is more lifestyle induced, which is why it is very important to maintain healthy exercise and diet. Okay, they. So I think we have actually answered almost most of the questions.
So there is one last question, क्योंकि ये 5-6 Okay. बार इन्होंने पूछा बिलाल ने. अच्छा, What okay, makes हाँ. a person immune to various diseases? So I think you have already answered, but Yeah, one so last one. I'll just tell you again. So the more number of viruses and bacteria you have successfully, like तुमको इन्फेक्शन होके तुम उसको पार करके जिंदा हो, तो उतना तुम्हारे पास उतने चीजों के अगेंस्ट इम्यूनिटी है बस. Okay, so I think now we are getting messages of gratitude because everybody loved Okay. your session. Thank you. I I also think enjoyed a lot. I am surprised that you are asking such big, important questions. These questions I have probably not thought in my bachelor's also, so I'm really impressed. Thank you. so. Thank you so much, scholars, and thank you so much, Upasna, for this wonderful session. And to be very honest, it has been very informative, not just for them, for me as well. And we have seen, most of our scholars were, present throughout the session, and they were questioning. I think, just to, know more and more from you. So we have done this introductory session, but it has been a very informative session. We'll definitely have you, again, in coming time, Sure thing. with some more informative stuff. So for now, scholars, I would want you to thank Upasna ma'am for the wonderful session that she conducted, so that she can just read out those texts in the chat box. I'm sure she is reading that out. But before we wrap in, I think I would want you to have some closing thoughts that about your experiences with our scholars today. Although they are all muted, but you will get to hear them in the end, because there is a lot of noise that comes in, when we unmute these. So we prefer, Yeah. questions in text form. So your comments about your experiences with them, then will definitely make you hear their voices. So I am reading all your messages. There are so many, so I will not take one name, but I want to thank all of you. I am really impressed that you have been reading so much, I'm sure, because you asked me questions about things that I have not even spoken about, like cytokines and all. This means you are very uh, proactive, you are reading regularly. मैं बहुत खुश हूँ कि आप पढ़ रहे हो. आई होप कि अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट हो तो हमें ज़रूरत है बहुत साइंटिस्ट की, स्पेशली गर्ल्स भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो फीमेल सिस्टम में अलग रिएक्शन होता है. तो बहुत अच्छा होगा जब औरत के नज़रिए से लोग स्टडी करेंगे. तो गर्ल्स भी, मैं चाहती हूँ कि आप साइंस ज्वाइन करें अगर आपको इंटरेस्ट हो. और मैं खुश हूँ कि आपने ये सब पूछा, और मैं आई होप कि आप आगे और भी पढ़ेंगे और भी क्वेश्चंस पूछेंगे, और मैं आपको जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आंसर कर पाऊंगी फिर. थैंक यू सो मच. सो कुछ बहुत सारे आपका ईमेल आईडी मांग रहे, सो कुड यू जस्ट राइट योर हाँ ईमेल हाँ, मैं आईडी इन यहाँ द लिख चैट देती विंडो. हूँ. ओके, तो मैं चाहती हूँ आप लोग सब्जेक्ट में लिख देना कि आपने KEI से हैं, तो मैं अलग से आंसर करके वो सभी को भेज देती हूँ, ताकि एक साथ whenever I आंसर, सो दैट सबको फ़ायदा हो जाएगा. एग्जैक्टली. सो आई थिंक, अभी स्कॉलर्स आपके पास ऑप्शन है अनम्यूट होके मैम को थैंक यू करने का. एंड वंस यू आर गोइंग टू लीव, आप थैंक यू बोल के चले जाएं, ताकि आपको सुने कि मुझे कौन सुन रहे थे. यू नो सो बट थैंक यू सो मच उपासना, थैंक यू सो मच ऑल द स्कॉलर्स. एंड मैं बहुत इम्प्रेस हो गया. आप काफी ज्यादा प्रिपेयर होके आए थे. एंड इनफैक्ट अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक बहुत सारी चीजों के बारे में ऑलरेडी आपको नॉलेज भी है, विच वाज काइंड ऑफ इम्प्रेसिव फॉर द स्पीकर हरसेल्फ. सो आप सब अनम्यूट कर सकते हैं खुद को, और उसी के साथ आप एग्जिट कर सकते हैं. आप थैंक यू बोल सकते हैं. और उसके अलावा उपासना मैम ने अपना ईमेल आईडी डाला है. यू कैन राइट इट upasna_sashidharan@hotmail.com. So अगर वहां पे नहीं मिलता है, प्लीज व्हाट्सएप मी, आई विल सेंड यू her email ID on WhatsApp. So thank you so much. Thank you, ma'am.
Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you ma'am. so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, master. Thank you very much. Thank you, ma'am. Much. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you, Thanks, ma'am. ma'am. So yeah, so we आपको मैंने इसलिए भी दिया, मैं सोचा आपको भी कौन लोग थे. So but yeah, I mean we have received a lot of texts, but thank you so much, Upasna, for this session. This was really informative session. I'll share the recorded video with you, Yeah, and we sure. will definitely plan our next session, and we'll plan the topic that we are going to have it on. Thank you so much for today, and thank you so much everybody for attending. Okay, God bless. Take care.